Good morning, everyone. Welcome to your lordships. Our today's topic is bail. Chapter 33 of CRPC provides for provisions relating to bail. What is the general meaning of bail? What does bail means? Bail means releasing a person who is arrested person, detained person on his personal bond or by surety. Okay. See, the term bail has not been defined in the code, but the term bailable offense has been defined in the code. That is what 2A, which says that any case in which bailable offense means an offense in which is provided as bailable in the first schedule of CRPC. Okay. So what does it mean? Means to set at liberty a person arrested or imprisoned. कोई पर्सन जिसका अरेस्ट हुआ है या इम्प्रिजन हुआ है, जो भी पर्सन, उसको फ्री करना, उसे रिलीज करना ऑन सिक्योरिटी बीइंग टेकन फॉर हिज अपीयरेंस, बट सिक्योरिटी लेके दैट व्हेन योर अपीयरेंस विल बी रिक्वायर्ड, देन ऑन दैट डेट एट सच प्लेस you should appear. And what is the object? Personal liberty is one of the most valuable fundamental right given under the Constitution. Article 21 what provides that? Right to life and personal liberty. Crime is committed against state. क्राइम स्टेट के अगेंस्ट होता है तो आपके पास दो इंटरेस्ट होते हैं. देयर आर टू इंटरेस्ट विच हैज टू बी बैलेंस्ड. वन इज सोसाइटल इंटरेस्ट, अनदर इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सोसाइटल इंटरेस्ट में क्या होता है आपका कि offense is committed, crime is committed against the state, then it must be in the favor of the society that the alleged accused or the person who has committed the offense must be convicted, must be detained, so that further commission of offense must be prevented. But what is your individual interest? That until unless the guilt of the accused person has been proved, till then he will be presumed as innocent. Until his guilt has been proved, he will be presumed as an innocent person. So if a person has not committed the crime, how can you detain that person? So balancing of interest must be done in this case, that सोसाइटल इंटरेस्ट भी बैलेंस आउट हो जाए आपका और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बैलेंस आउट हो जाए. उस केस में उसे डिटेंशन में तो ले लिया, बट इफ लगता है कि बेलेबल ऑफेंस है या इस सच सीरियस नेचर का, तो देन इन दैट केस ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड इंक्वायरी चलती रहेगी, आपका ट्रायल कैरी ऑन होता रहेगा. ओके. नाउ वी विल रीड सेक्शन 436. इन वॉट केसेस बेल टू बी टेकन, किन केसेस में बेल मिल सकती है? 436 एंड 436A, इनमें बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. ओके. What does 436 says? When any person other than a person accused of a non-bailable offense, that means the person who is accused is of which offense? Other than non-bailable offense. See, is arrested or detained, कोई person जिसने कोई ऐसा offense commit किया है which is other than non-bailable offense, और वो arrested and detained without warrant by an officer in charge of the police station और appears or is brought before a court. That means या तो पुलिस ऑफिसर ने उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया, क्योंकि अगर विद वारंट अरेस्ट किया होगा देन इन दैट केस वारंट में मेंशन होता है दैट इट इज़ अ बेलेबल केस. सेक्शन 71 हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है वारंट में दैट इट इज़ अ बेलेबल केस एंड सच अमाउंट की श्योरिटी पे करने पे द अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल. सो इफ द अक्यूज पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड और डिटेन बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, और वो खुद ही इस केस में कोर्ट के सामने आ जाता है, अपीयर्स और ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, या तो पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया विदाउट वारंट या वो खुद ही कोर्ट के सामने आ जाता है. इन दैट केस एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, दैट मीन्स उस ऑफिसर की कस्टडी में रहते हुए
और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट, या कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग हो रही, जब वो अपीयर हुआ या ब्रॉड लाया गया है, देन इन दैट केस इफ ही इज रेडी टू टेक बेल, इफ ही इज प्रिपेयर्ड, देन इन दैट केस सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर वो पर्सन प्रिपेयर्ड है और उसने कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया है विच इज अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस, देन इन दैट केस ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, provided that such officer or court, if he or it thinks, may and shall, if such person is indigent and is unable to furnish security. Indigent means if that person is poor and he is ready to furnish, he is unable to furnish security. That means वो इतना poor है that he cannot furnish the security instead of taking bail. From such person, discharge him. Then in that case, what will court do? Court or police officer what will do? Discharge him on his executing a bond without surety for his appearance as in hereinafter provided. That means if the person is an indigent person and he has committed a offense other than a non bailable offense, then in that case what will magistrate or police officer will do? He will discharge him, उससे एक बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लेंगे, पर्सनल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी का बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लेंगे, दैट ऑन दिस एंड दिस डेट यू विल हैव टू अपीयर। पर्पस क्या होता है बॉन्ड एक्सिक्यूट कराने का? उसमें मेंशन होता है कि आपको सच प्लेस पे एंड सच डेट पर अपीयर होना है, इसीलिए हम आपको रिलीज कर रहे हैं सो दैट आप ये चीज ये प्रोसीजर फॉलो करें। इफ कोर्ट को लगता है दैट ऑफेंस इस नेचर का है दैट उसे रिलीज करना जरूरी नहीं है, उसे रिलीज करने से वो ही में फ्ली फ्रॉम जस्टिस, ही में इंड्यूस दी पर्सन्स एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, थ्रेट दे सकता है उन्हें, प्रॉमिस दे सकता है टू नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट, देन इन दैट केस कोर्ट विल नॉट रिलीज हिम बेल। बट इफ कोर्ट को लगता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा कोई ऑफेंस कमिट किया है और इंडिजेंट पर्सन है और फर्निश नहीं कर सकता श्योरिटी, देन इन दैट केस ही विल बी डिस्चार्ज एंड ऑन एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी। कैसे पता चलेगा वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन है? हाउ द कोर्ट विल गेट टू नो, हाउ द पुलिस ऑफिसर विल गेट टू नो दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन? Explanation says that where a person is unable to give bail within a week of the date of his arrest, अरेस्ट के एक हफ्ते के अंदर तक अगर वो पर्सन बेल नहीं ले पाया तो ये माना जाएगा दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन। इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करने के लिए? दैट ही इज एन इंडिजेंट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोवाइजो। इस प्रोवाइजो के लिए कैसे माना जाएगा कोई पर्सन इंडिजेंट पर्सन है? इफ ही डज नॉट फर्निश द बेल, उसने एक हफ्ते के अंदर बेल नहीं लिया फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि किस पर्सन को इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग बेल अंडर सेक्शन 436? देन द पर्सन हु इज अनेबल टू गिव बेल विदिन 1 week of his arrest। Provided further that nothing in this section shall be deemed to affect the provisions of subsection 3 of the section 116 और 446A। 116 आप लोग पढ़ चुके हैं, इंक्वायरी होती है 106 से 110 का अगर केस है फॉर कीपिंग पीस और फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, उसकी सिक्योरिटी लेते हैं इन सेक्शंस के अंदर, तो उसकी जो इंक्वायरी होती है दैट इज अंडर सेक्शन 116। एंड 446A प्रोवाइड्स दैट इन केस बॉन्ड एक्सिक्यूट कराया गया है, बॉन्ड की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? बॉन्ड विल बी फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 446। एंड 446A सेज दैट इफ अ बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड देन इन दैट केस इट शैल स्टैंड कैंसल्ड। अगर बॉन्ड का फॉरफीचर हो गया है, फॉरफिट हो गया है, दैट मीन्स कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं। और पेनल्टी फॉरफीचर मीन्स कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, कुछ ऐसा कमिट हुआ है कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया एंड यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट, दैट इज व्हाट फॉरफीचर। तो अगर बॉन्ड फॉरफिट हुआ है 446A कहता है कि दैट शैल स्टैंड कैंसल्ड, उस बॉन्ड को कैंसल्ड मानेंगे। Subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1 where a person has failed to comply with the conditions of the bail bond as regard the time and place of the attendance, that means a person has failed to comply with the conditions of bail bond, bail bond की conditions comply नहीं की,
विद रिगार्ड टू टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस से रिलेटेड कंडीशंस कंप्लाई नहीं की, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, उसे बेल पे रिलीज करने से मना कर सकती है. When on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, and any such refusal shall be without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty and thereof under section 446. That means बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया था एक्यूज से, दैट सच एंड सच डेट पे आना है आपको इस पर्टिकुलर केस में, ही डजंट अपीयर ऑन दैट डेट एट सच प्लेस, एंड इन दैट केस जब सब्सिक्वेंट सेम केस के सब्सिक्वेंट स्टेज पे वो पर्सन आता है, देन इन दैट केस कोर्ट में रिफ्यूज टू गिव हिम बेल, रिलीज हिम ऑन बेल, कोर्ट मना कर सकती है. ओके 436A, maximum period for which an under trial prisoner can be detained. Under trial prisoners means the person who is imprisoned during the trial. Where a person has during the period of investigation, inquiry or trial, that means a person is under in imprisonment during investigation, inquiry or ट्रायल. इस पीरियड इसमें से किसी के भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू चल रही है, ट्रायल चल रहा है और इंक्वायरी हो रही, इस पीरियड में कोई पर्सन डिटेन्ड है ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, वो डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए. नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर दैट लॉ. दैट मीन्स इफ उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है, अगर एक पनिशमेंट उसमें से डेथ है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पनिशमेंट आईपीसी की जिसमें डेथ भी ग्रांटेड है, कि डेथ भी दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकता है और आपका 10 ईयर्स से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, तो डेथ क्या है, इसमें से एक पनिशमेंट है कि डेथ भी ग्रांट की जा सकती है, देन इन दैट केस उस पर अप्लाई नहीं करेगा 436A. अदर केसेस में अंडर एनी लॉ undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment. That means during the stage of investigation, inquiry और trial अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और इस पीरियड के ड्यूरिंग में वो डिटेंशन में था, कितने टाइम तक के लिए, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड. दैट मीन्स इफ 7 ईयर्स की पनिशमेंट थी और 8 ईयर्स की पनिशमेंट थी उस ऑफेंस में प्रोवाइडेड है, तो 4 साल तक के लिए वो डिटेंशन में है, 4 साल से वो डिटेंशन में है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, देन इन दैट केस ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड. किस पे छोड़ेंगे उसे, पर्सनल बॉन्ड पर, विद और विदाउट श्योरिटी. ओके provided that the court may, after hearing the PP and for reasons to be recorded in writing, order the continued detention of such period for a period longer than 1/2 of the said period, or release him on bail instead of the personal bond with or without surety. That means if 1/2 से ज़्यादा की imprisonment उसने काट ली है, 1/2 से ज़्यादा he has been in detention, then in that case it is his right to get the bail. But court क्या कर सकती है, PP को सुनेगी, PP को सुनेगी कोर्ट उस ग्राउंड पे वेदर दिस पर्सन शुड बी, दिस अक्यूज पर्सन शुड बी रिलीज ऑन बेल और नॉट, एंड आफ्टर हियरिंग पीपी एंड इन राइटिंग रिकॉर्ड करके रीजन, कोर्ट क्या कर सकती, कोर्ट के पास पावर है या तो उस डिटेंशन को 1/2 पीरियड से ज़्यादा भी कंटिन्यू करने के लिए बोल सकती, और उस पर्सन को, अक्यूज पर्सन को हु हैज़ बीन अंडर डिटेंशन, उसे रिलीज कर सकती है ऑन बेल. ओके तो 1/2 imprisonment अगर काट ली है एक्यूज पर्सन ने, देन दैट के ही शैल बी रिलीज ऑन बेल. बट इफ पीपी को हेयर करने के आफ्टर हियरिंग द पीपी एंड रीजंस रिकॉर्ड करने, इन राइटिंग रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट को लगता है दैट ये डिटेंशन कंटिन्यू होनी चाहिए, तो कोर्ट डिटेन कर सकती है उसको फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट और रिलीज कर सकती है उसे बेल पर. बट इफ उसने मैक्सिमम पनिशमेंट अंडरगॉन कर लिया, provided further that no such person shall in any case
be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law. That means जो maximum provided थी offense, maximum punishment provided थी उस offense के लिए उस law में, वो period भी उसका complete हो चुका है. उस पूरे period में he has undergone the detention. Then in that case किसी भी case में उसको release कर दिया जाएगा. He shall be released. See, more than maximum period of imprisonment. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल का पीरियड चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इंक्वायरी चल रही थी, ट्रायल चल रहा था. उस बीच उसने जितने टाइम पीरियड के लिए वो डिटेंशन में रहा, वो टाइम पीरियड किससे ज़्यादा था? मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड थी उस ऑफेंस के लिए, उससे ज़्यादा का टाइम या उतना टाइम अगर उसने ही हैज़ बीन इन डिटेंशन, एंड इन दैट केस ही शैल बी रिलीज ऑन बेल. ये आपका इन्वेस्टिगेशन चला, फिर आफ्टर दैट इंक्वायरी हुई, फिर उसके बाद ट्रायल हुआ. ट्रायल यहाँ कंक्लूड हुआ, पर्सन कन्विक्टेड. ओके, पर्सन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस पास होगा आपका. सो लेट्स एज्यूम अगर उसने इस पीरियड के ड्यूरिंग उसने 5 years की पनिशमेंट उसे मिल चुकी, ही हैज़ बीन इन इम्प्रिजन फॉर अ टर्म 5 years, एंड सेंटेंस में उसे 7 years की इम्प्रिजनमेंट मिली है. देन इन दैट केस नाउ अब वो कितने टाइम तक के लिए जेल में रहेगा, कितने टाइम तक के लिए उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी? दैट इज 2 years. ये कहाँ लिखा है आपका? आपका सेक्शन 428 CRPC प्रोवाइड्स दैट द term, the time period which a accused person has been in detention during investigation or inquiry or trial shall be set off. इस पीरियड से सेट ऑफ होगा जो पीरियड उसको आफ्टर कन्विक्शन ग्रांट करती है कोर्ट. आफ्टर कन्विक्शन सेंटेंस जिस टाइम पीरियड का कोर्ट पास करती है, उस पीरियड को सेट ऑफ करेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए वो ऑलरेडी इन डिटेंशन रह चुका है. ओके, एक्सप्लेनेशन इन कंप्यूटिंग द पीरियड. और अगर उसने मान लीजिए इफ 7 years की पनिशमेंट प्रोवाइडेड थी एंड इंटायर 7 years उसको डिटेंशन में वो रहा है, मैक्सिमम पीरियड वाला केस हो गया, देन इन दैट केस अब उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी उसने इम्प्रिजनमेंट काट ली अपनी. In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by accused shall be excluded. That means period of detention count कर रहा है that कितने time के लिए the accused person has been detained. Then in that case, that time period shall be excluded because of in which the delay has been caused because of the accused की वजह से जो delay cause हुआ है वो time period exclude कर देंगे period of detention count करने में. बिकॉज आपको आपके ही एक्ट रॉन्ग एक्ट का बेनिफिट नहीं दे सकता. आपने कोई रॉन्ग एक्ट किया जिसके साथ डिले कॉज हुआ है तो आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपको बेनिफिट मिलेगा विच यू हैव डन इन गुड फेथ. आपका उसमें कोई गलत रोल नहीं था. 437 नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल. यहां बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है 437 है, इट इज एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन. ओके, when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense. 436 what says? Offense other than non-bailable offense. And what does it says? Commission of any non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before the court other than High Court or Court of Session. Why it is written here other than High Court or Court of Session? Because it is magistrate's power under section 437. High Court and Court of Session की powers कहाँ provided है? 439 में bail grant करने की. Okay, 437 relates with the magistrate. Okay, तो किसी भी कोर्ट में कोई accused person आया या लाया गया या पुलिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया या डिटेन किया विदाउट वारंट, किस ऑफेंस में? नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में. Then in that case he may be released on bail. What does 436 say? He shall be released on bail. But 437 he may be released on bail. It is the discretion of the court to release such person on bail or not. But कोर्ट रिलीज तो कर सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में भी बेल दे सकती है, बट देयर आर 2 केसेस इन केस में बेल नहीं देगी. नो बेल केसेस, दीज आर नो बेल केसेस.
Okay, what does it says? Such person shall not be so released if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or life imprisonment. That means reasonable grounds हैं ये believe करने के लिए that उस person ने कौन सा offense commit किया है which is punishable with death or life imprisonment. Then in that case he will not be released on bail. Such person shall not be so released if such offense is cognizable offense. कौन सा offense commit किया? Cognizable offense commit किया. And plus he had been previously convicted of an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisoned for 7 years or more. That means कोई offense किया है which is punishable with death या life imprisonment, then in that case he shall not be released on bail. और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है प्लस प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है किस केस में? ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years और मोर, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट के लिए हो चुका है. और ये किसका आपका प्रीवियस कन्विक्शन किस केस में हुआ है? डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 years और उससे ज़्यादा की पनिशमेंट से पनिशेबल है. या फिर प्रीवियस कन्विक्शन किस केस का है? उसका 2 or more occasions पे वो कन्विक्ट हुआ है, 2 or more occasions पे उसका कन्विक्शन हुआ है ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने कमिट किया था, इस पे 2 या 2 से ज़्यादा बार के लिए वो कन्विक्ट हो चुका है प्रीवियसली. विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years. कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा है? पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years. Then in these cases he shall not be released on bail provided the court may direct that a person referred to in clause 1 or clause 2 be released. But in case में भी exceptions हैं. जनरल रूल क्या है कि इन केसेस में द पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, बट if the person is below the age of under the age of 16 years or is a woman or is sick or infirm, then in that case he may be released on bail. Court may release in these cases. And what the second exception says, provided further that the court may also direct that a person referred in clause 2, that means clause 1 पे नहीं लगेगा ये proviso, clause 2 पे applicable है. Be released on bail if it is satisfied that it is just and proper so to do for any special reason. That means if किसी special reason की वजह से उसको रिलीज करना है, किसमें? क्लॉज 2 वाले पर्सन को रिलीज कर सकते, क्लॉज 1 वाले पर्सन को रिलीज नहीं कर सकते. स्पेशल रीजन जैसे हार्ट अटैक आ गया उस पर्सन को तो उसको हॉस्पिटल भेजना है फॉर चेकअप, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, या उसके चाइल्ड की किसी चाइल्ड की शादी है, सन और डॉटर की, और एनी अदर स्पेशल रीजन, तो उस स्पेशल रीजन को कोर्ट कंसीडर कर सकती है. एंड इफ द कोर्ट थिंक दैट ही मे बी रिलीज ऑन बेल, देन द कोर्ट मे ग्रांट द बेल. बट इफ द कोर्ट थिंक दैट he should not get the bail, then in that case court will refuse to grant the bail. So first proviso is applicable on both the clauses, first and second, but the second proviso relates only with the second clause. Provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation. During investigation कहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है अरेस्टेड पर्सन का? 54A of CRPC. And this investigation is relevant under which section of Evidence Act? Section 9, Test Identification Parade. Okay. So the accused person may be required for being identified by witnesses during investigation shall not be, this identification shall not be sufficient ground for refusing to grant bails. Just because accused person का, arrested person का identification होना है, सिर्फ इस ground पे उसे bail पे release करने से refuse नहीं कर सकती है court. If he is otherwise entitled to released on bail, अगर उसे otherwise bail मिल सकती थी तो just because इस reason पे उसे मना नहीं कर सकता. However, उससे अंडरटेकिंग ली जा सकती है दैट ही शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन एज मे बी गिवन बाय द कोर्ट. दैट मीन्स जब कोर्ट डायरेक्शन देगी कि हाँ आपका आइडेंटिफिकेशन होना है, यू विल हैव टू अपीयर सच एंड सच प्लेस एंड सच डेट एट सच टाइम, देन ही विल हैव टू अपीयर. ओके, ये अंडरटेकिंग साइन करा लेगी कोर्ट.
provided also that no person shall, if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing the PP. That means अगर उस पर्सन को आप बेल दे रहा है कोर्ट, किस पर्सन को, जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया विच इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और imprisonment for 7 years or more than 7 years, then in that case court will give opportunity to PP and court will hear PP that why he should not get the bail. After hearing PP, if court considered that he should not be given bail, then in that case court may refuse to grant the bail. But if court considers that no, in this case he should get the bail, in that case court will grant the bail. So in cases में PP को hear करना जरूरी है. Hearing of PP is mandatory in this case. If it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are no reasonable ground for believing the accused has committed a non-bailable offence. किसी भी स्टेज पर अगर ऑफिसर को लगता है, दैट मीन इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है या इंक्वायरी ऑन ट्रायल की स्टेज पे कोर्ट को लगता है दैट द अक्यूज पर्सन हैज नॉट कमिटेड द नॉन-बेलेबल ऑफेंस, there are not reasonable ground for believing that accused person has committed a non-bailable, but that there are sufficient ground for further inquiry into guilt. That means क्या लग रहा है कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसने नहीं किया, नॉन अवेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया, बट इंक्वायरी हो सकती है इस केस में इसके गिल्ट के रिगार्डिंग सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर फर्दर इंक्वायरी, देन इन दैट केस द अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. Okay, subject to provisions of section 446, that is your bond forfeit हो जाता तो कैंसिल हो जाएगा आपका. एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी, इंक्वायरी कंटिन्यूएशन चलती रहेगी, बट दैट पर्सन शैल बी रिलीज इन दिस केस, इन विच केस द कोर्ट को लगता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है लेकिन फर्दर इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस इट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और at the discretion of such officer or court on the execution by him of a bond without sureties for his appearance hereinafter. या फिर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे कोर्ट को लगता है उससे बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लेना चाहिए तो कोर्ट उससे बॉन्ड एक्सिक्यूट करा लेगी. When a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment, इन केसेस में क्या है 437 सबसेक्शन 3 में जो केसेस प्रोवाइडेड है उन केसेस में बेल ग्रांट करते टाइम कोर्ट कंडीशंस इंपोज कर सकती है. ओके, किन केसेस में? When a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or of an offence under chapter 6 of IPC, chapter 16 of IPC, section 17 or 16 आपको offences against body, offences against property of IPC, या फिर offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or abatement of or conspiracy or attempt to commit any such offence is released on bail under subsection 1, the court shall impose the condition. इन केसेस में अगर किसी पर्सन को रिलीज किया गया है बेल पर, देन कोर्ट कंडीशन लगा करके रिलीज कर सकती है उस पर्सन को. क्या कंडीशंस इंपोज कर सकती है कोर्ट? that such person shall attend in accordance with the condition of the bond executed under this section. That means bond में जो भी conditions mentioned है regarding his appearance, that person shall attend in accordance with those conditions. That such person shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused, suspected of the commission of which he is. That means जिस offence के लिए that person has been accused, उससे similar nature का offence वो commit ना करे. ये conditions लगा सकती है. आपको similar offence commit नहीं करना है जिसके लिए आप accused हैं, या ये suspicion है that you have committed that offence. Third is, such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to whom? To any person who is acquainted with the facts of the case, so as to dissuade him. That means convince him to not to do that act. What not to do?
from disclosing such fact to the court or any police officer or tamper with the evidence. कोर्ट और क्या कंडीशन लगा सकती है, दैट आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसी भी पर्सन को, ना तो किस पर्सन को हु इज एक्वेंटेड विद, जिसको फैक्ट्स पता है केस के, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसे ना तो इंड्यूस करेंगे, ना ही कोई थ्रेट देंगे, ना ही कोई प्रॉमिस करेंगे, किस पर्पस से, कि वो उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना करे, उस चीज के ना ही कोई इंड्यूसमेंट दे सकते हैं, ना ही कोई थ्रेट दे सकते हैं, ना ही कोई प्रॉमिस दे सकते हैं, ना वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस ना तो डायरेक्टली दिया सकता है, ना ही इनडायरेक्टली दिया सकता है, और ना ही कोई एविडेंस टैम्पर करेंगे। ओके ये कंडीशंस कोर्ट इम्पोज कर सकता है। क्या क्या, कि बॉन्ड में जो कंडीशंस प्रोवाइडेड अटेंडेंस से रिगार्डिंग, आपको उस अकॉर्डिंग अटेंडेंस इंश्योर करनी है अपनी, सिमिलर नेचर का ऑफेंस कमिट नहीं करना है, और किसी भी पर्सन को जो हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस उसे इंड्यूस नहीं करना है, थ्रेट नहीं करना है, और प्रॉमिस नहीं देना है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना ही एविडेंस को टैम्पर करना है। And may also impose in the interest of justice such other conditions as is considers necessary. Other conditions भी court impose कर सकती है which is required in the interest of the justice. An officer or a court releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his reason फॉर सो डूइंग। दैट मीन्स अगर सबसेक्शन 1 और 2 में कोर्ट रिलीज कर रही किसी पर्सन को, देन दैट मस्ट बी एन स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स रीजन मस्ट बी रिटन इन राइटिंग। ओके, जो भी ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में रीजंस आपके रिकॉर्डेड होने चाहिए इन राइटिंग, दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। सो अगर सबसेक्शन 437 के सबसेक्शन 1 एंड 2 में किसी पर्सन को बेल पे रिलीज किया जा रहा है, देन इन दैट केस उसके रीजंस रिकॉर्ड होने चाहिए इन राइटिंग में, किस ग्राउंड पे उसे बेल पर रिलीज किया गया है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच ही हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल। Any court which has released a person on bail under subsection 1 or 2 may, if it considers it necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to custody. That means bail grant करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है that उसका अरेस्ट जरूरी है, it is necessary that he must be arrested, then in that case कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि उसे अरेस्ट करें एंड कमिट करें कस्टडी में। If in any case triable by a magistrate, that means case is triable by a magistrate, chapter 19 or 20, the trial of a person accused of any non bailable offense, और किस person का trial चल रहा है, who is accused of a non bailable offense, is not concluded within a period of 60 days. That means non bailable offense से का accused person है, उसका trial within 60 days नहीं हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स फॉर टेकिंग एविडेंस इन दिस केस। कहाँ से 60 डेज, आपका चार्ज फ्रेम हुआ, ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल में क्या होता है, कोर्ट एविडेंस लेने की डेट फिक्स करती है, द फर्स्ट डेट इज प्रोसिक्यूशन एविडेंस, पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस देने की डेट फिक्स होती है, उसके बाद 313 का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका डिफेंस एविडेंस लेती है कोर्ट। सो फर्स्ट एविडेंस जहां पर कोर्ट ने लिया है वहां से 60 डेज के अंदर अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, किस केस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस के एक्यूज के ट्रायल चल रहा है उस केस में, देन इन दैट केस सच पर्सन शैल, if he is in custody during the whole of the said period, पूरे time period during these 60 days, if he has been in custody, that person shall be released on bail to the satisfaction of the magistrate, unless for reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise thinks. That means non bailable offense का केस है, non bailable offense से का accused person है, उसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल किस कोर्ट में चल रहा है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है, एंड वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाता विद इन 60 डेज फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ टेकिंग एविडेंस, उसके विद इन 60 डेज ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाता, एंड दैट अक्यूज पर्सन हैज बीन इन कस्टडी ड्यूरिंग, हैज बीन इन डिटेंशन ड्यूरिंग दीज 60 डेज, देन इन दैट केस ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। इफ मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसे रिलीज होना चाहिए तो मैजिस्ट्रेट रिलीज करेगा, ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, बट इफ मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट ही शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, देन ही शैल रिकॉल इट्स रीजंस इन राइटिंग that why he shall not be released on bail. Okay, इसमें अब टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा, 60 डेज फ्रॉम द डे फर्स्ट डेट फिक्स फॉर टेकिंग एविडेंस। ठीक, 7,
if at any time after the conclusion of trial of a person accused of a non-bailable offense, ट्रायल कंक्लूड हो गया, कौन से पर्सन, नॉन बेलेबल ऑफेंस का ट्रायल कंक्लूड होने से बाद, एंड बिफोर जजमेंट इन डिलीवर्ड, दैट मीन्स ट्रायल हेयर ट्रायल आपका चला एंड ट्रायल यहाँ आपका कंक्लूड हो गया, यहाँ पर जजमेंट पास होना है. इस टाइम पीरियड में अगर कोर्ट को लगता है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी सच पर्सन, दैट ट्रायल कंक्लूड होने के बाद और जजमेंट देने से पहले कोर्ट को लगता है अक्यूज पर्सन गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस को करने का. कौन सा ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस का ट्रायल चल रहा था. देन इन दैट केस ही इट शैल रिलीज द अक्यूज इफ ही इज कस्टडी, वो को अक्यूज को रिलीज कर देगा अगर वो कस्टडी में, ऑन द एक्सक्यूशन बाय हिम अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर अपीयरेंट टू हियर जजमेंट डिलीवर. देन इन दैट केस दैट अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन एक्सक्यूशन ऑफ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी. 437A, bail to require accused to appear before next appellate court. So before conclusion of trial and before disposal of appeal, that means trial cases में ट्रायल कंक्लूड होने से पहले एंड अपील केसेस में अपील डिस्पोज ऑफ होने से पहले, द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और एपलेट कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस, दैट मीन्स ट्रायल कोर्ट, और द एपलेट कोर्ट इन द केस ऑफ अपील, shall require the accused to execute bail bond with surety. ट्रायल कंक्लूड होने से पहले, अपील डिस्पोज ऑफ होने से पहले, ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट अक्यूज पर्सन से कह सकती है टू एक्सिक्यूट बेल बॉन्ड विथ श्योरिटी. शैल मैंडेटरी है. टू अपीयर बिफोर द हायर कोर्ट एज एंड व्हेन सच कोर्ट इश्यूज नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपील. दैट मीन्स किस चीज का है ये, किस चीज का बॉन्ड एक्सिक्यूट करा रही है कोर्ट, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट. विच कोर्ट, हायर कोर्ट, टू अपीयर बिफोर हायर कोर्ट as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court. That means ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट जो जजमेंट आएगा उसके अगेंस्ट अपील लाई करती है अगर, then in that case उस केस में भी कोर्ट बेल बॉन्ड लेगी अपील ट्रायल कंक्लूड होने से पहले. दैट हायर कोर्ट जब भी नोटिस इशू करेगी, जब इस जजमेंट ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील या पिटीशन फाइल होती है, या फिर अपीलेट कोर्ट कहाँ लेगी, अपील डिस्पोज होने से पहले एक बॉन्ड एक्सिक्यूट कराई कोर्ट से, दैट इफ इस जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल होती है, देन इन दैट केस यू मस्ट अपीयर बिफोर दैट कोर्ट व्हेन सच कोर्ट इश्यूज नोटिस, एंड सच बेल बॉन्ड शैल बी इन फोर्स ऑफ 6 मंथ. ये जो बेल बॉन्ड एक्सिक्यूट करा रही है ट्रायल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट, इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्फोर्समेंट में रहेगा, 6 मंथ. ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम में. ये टाइम पीरियड दिस टाइम पीरियड हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट कितने टाइम के लिए 437A का बेल बॉन्ड इनफोर्स रहता है. इफ सच एक्यूज फेल्स टू अपीयर, the bond shall stand forfeited and the procedure under section 446 apply. अगर एक्यूज नहीं आ पाता, ये बॉन्ड एक्सिक्यूट हो चुका है, कोर्ट ने एक्सिक्यूट करा लिया बॉन्ड, एक्यूज नहीं आता, देन इन दैट केस बॉन्ड फॉरफीट हो जाएगा अंडर सेक्शन 446 एंड 446 का प्रोसीजर देन अप्लाई करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट. 438 इज योर एंटीसिपेटरी बेल विच वी विल डू आफ्टर डूइंग 439. 439 is your special powers of High Court or Court of Session regarding bail. 439, 437 में किसकी पावर है, 436, 36A, 437 में मैजिस्ट्रेट की पावर है, बट 439 is the special powers of High Court or Court of Session. A High Court or Court of Session may direct that any person accused of an offence and in custody be released on bail. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या डायरेक्ट कर सकती है, द पर्सन हु इज इन कस्टडी shall be, he may be released on bail, and if the offence is of the nature specified in subsection 3 of 437, that means कंडीशन इम्पोज की गई है किस केसेस में, चैप्टर 16 का केस है, आईपीसी के चैप्टर 17 का केस है, चैप्टर 6 का केस है, या कोई ऐसा केस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर्स है, देन इन दैट केस
may impose any conditions which is considered necessary for the purpose mentioned in that subsection. That means किस पर्सन को रिलीज कर सकती है कोर्ट? जो पर्सन कस्टडी में है अक्यूज एक ऑफेंस का, एंड ऑफेंस किस नेचर का है? 437(3) का है। देन इन दैट केस उस केस में कंडीशन इम्पोज कर सकती है एंड रिलीज कर सकती है उस पर्सन को। दैट एनी कंडीशन इम्पोज बाय मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन, दैट मीन्स जो भी कंडीशन मैजिस्ट्रेट ने इम्पोज की है किसी पर्सन को रिलीज करते टाइम, उस कंडीशन को सेट असाइड कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है। दैट मीन्स वो कंडीशन सेट असाइड कर सकती है हाई कोर्ट, या उसे मॉडिफाई कर सकती है। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई कंडीशंस इम्पोज करके कोई बेल ग्रांट की है एंड द पर्सन वांट्स टू सेट असाइड दैट conditions, he may apply to the High Court or Court of Session under section 439. So if 437 में बेल नहीं मिल रही किसी पर्सन को, then he may apply under section 439. Provided that the High Court or Court of Session shall, before granting the bail to a person who is accused of an offence which is exclusively triable by the Court of Session, दैट मीन्स अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस केस में ग्रांट कर रही है बेल विच इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, देन दैट केस बिफोर ग्रांटिंग बेल टू दैट पर्सन और विच दो नॉट सो ट्राइबल, या फिर या तो कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल है, या इफ कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल नहीं है बट पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, देन इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी? नोटिस देगी। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हाट विल इट डू? जिसके पास भी वो पिटीशन पड़ी 439 की एप्लीकेशन पड़ी है, वो पीपी को नोटिस देगी। तब जब तक पीपी को नोटिस दे कि पीपी से हियरिंग नहीं कंडक्ट करा, पीपी की हियरिंग नहीं सुन लेगी, तब तक कोर्ट बेल नहीं देगी। सी, गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल, बेल की एप्लीकेशन जो आई है 439 में उसकी नोटिस देगी पीपी को, unless it is for reason to be recorded in writing of opinion that is not practicable to such notice. So general rule is what? Court shall give notice to the PP, but if court को लगता है इस केस में PP को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसे पर से ऐसे ही बेल पे रिलीज कर देते हैं, then in that case कोर्ट को अपनी ओपिनियन इन राइटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। किस केस में? या तो कोर्ट एक्सक्लूसिव, या तो केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और इफ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, a high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this section under this chapter, that is chapter 33, be arrested and commit him to custody. दैट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये भी डायरेक्ट कर सकती हैं जिस पर्सन को रिलीज किया गया है इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर 33 में कहीं भी उसे बेल पर रिलीज किया गया है, देन उस पर्सन को अरेस्ट करने का एंड कस्टडी में कमिट करने का ऑर्डर दे सकती है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ सेक्शन 438, direction for grant of bail to apprehending arrest. It is what said? Anticipatory bail. Anticipatory bail is provided under which section? 438. So what is anticipatory bail? In anticipation, a person has an anticipation that he may be arrested. He may be arrested in a non-bailable case. Then in that case, he may apply to the High Court or Court of Session. In case of anticipatory bail, High Court or Court of Session has the concurrent powers. Both have the same jurisdiction. तो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाएं, चाहे तो हाई कोर्ट में लगाएं, दोनों में से किसी के पास भी लगा सकते हैं, दोनों के पास सेम पावर्स हैं, बट इट इज प्रैक्टिकेबल दैट पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाएं देन हाई कोर्ट, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। So what does 438 say? 438 आपका एंटिसिपेटरी बेल है एंड 436 437 आपका रेगुलर बेल है। okay? तो रेगुलर बेल के लिए कब अप्लाई करते हैं? आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट होने के बाद जब बेल के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट योर रेगुलर बेल। अरेस्ट हो गए हैं, अब बेल चाहिए तो किस में जाएंगे? या तो 436 में जाएंगे तो 436 का केस, अदरवाइज 437 में जाएंगे। एंटिसिपेटरी बेल में बिफोर अरेस्ट एप्लीकेशन कर दी जाती है 438 में, द पर्सन विल अप्लाई, द एप्लीकेंट विल अप्लाई टू द कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन
for anticipatory bail, that in case any arrest has been made against me, I shall be released on bail. Okay. So when any person has reason to believe that he may be arrested, reason to believe होना चाहिए. Mere fear is not your reason to believe. आपके पास ग्राउंड्स होने चाहिए. किन ग्राउंड्स पे यू आर सेइंग दैट यू मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. किस एक्यूजेशन पर से अरेस्ट किया जाता था? नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में. सो 438 अप्लाइज इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट बिकॉज बेलेबल ऑफेंस में तो आप वैसे ही बेल ले सकते हैं, बट आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई एक ऐसा एक्यूजेशन लगा सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का, देन इन दैट केस आपको इस चीज का रीजन टू बिलीव है, तो आपको कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा. वाई यू थिंक दैट देर आर ग्राउंड्स that against you any accusation can be made on a non-bailable offense. Then in that case, that person may apply to the High Court or Court of Session for a direction under this section. उस person के पास reason to believe है that non-bailable offense का कोई मेरे ऊपर accusation लगा सकता है. Then in that case, under section 438, he may apply to the High Court or Court of Session for a direction on this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail. कोर्ट डायरेक्ट कर सकती. इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट ये डायरेक्ट करे या ना करे, दैट सच पर्सन इन केस ऑफ अरेस्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल. दैट मीन्स अरेस्ट से इंजंक्शन नहीं है. कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर रही कि उस पर्सन को अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा. कोर्ट ये ऑर्डर कर रही अगर उस पर्सन को अरेस्ट किया गया, then in that case he shall be released on bail in case of anticipatory bail granted to him. When the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, it may include such conditions in such direction in the light of the facts of the particular case as it may things, including. That means subsection 2 में condition impose कर सकती है anticipatory bail के केस में. कोर्ट, जो भी कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर रही है, वो कंडीशंस इंपोज कर सकती है. कैसी कंडीशन? अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द इंटरोगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. दैट मीन्स जब पुलिस ऑफिसर इंटरोगेशन के लिए आपकी अटेंडेंस रिक्वायर करेगी, यू विल हैव टू अपीयर, you shall make yourself available. Other is a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case. That means वो person directly या indirectly किसी person को ना तो threat देगा, ना ही कोई inducement देगा या promise देगा किसी person who is acquainted with the facts of the case, so as to dissuade him from disclosing such facts as to the case of to any police officer. Same condition आपकी 437 में भी impose हो रही है. A condition that the person shall not leave India without the previous permission of the court. That means वो ये भी condition लगा सकती है court that you shall not leave the India without the permission of the court. Such other conditions as may be imposed under subsection 437(3). Other conditions में impose की जा सकती हैं. कौन सी? जो 437(3) में impose की जा सकती हैं. As if bail were granted under that section. ये मानते हुए that bail 437 में ग्रांट की गई है, then in that case 437(3) की भी कंडीशन कोर्ट इम्पोज कर सकती है. अदर कंडीशंस यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया सो दैट कंडीशंस केवल यहीं तक लिमिटेड ना हो. अगर कोई अदर ग्राउंड्स भी हैं जिन पे कंडीशंस इम्पोज करना नेसेसरी है, so it depends upon the facts and circumstances of the case, that on which condition in which cases what conditions may be imposed. तो ये तीन तो बेसिक कंडीशंस है जो कोर्ट इम्पोज कर सकती है. अदर कंडीशन भी कोर्ट इम्पोज कर सकती है इफ इट थिंक्स फिट. If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, अगर वो पर्सन, अगर पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करता है आफ्टर 438 का डायरेक्शन पास होने के बाद, 438 में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद, देन इन दैट केस अगर वो पर्सन इज प्रिपेयर्ड आइदर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और एट एनी टाइम वाइल इन कस्टडी, अरेस्ट के टाइम पर ही अगर वो अपीयर्ड है या कस्टडी के टाइम पर वो प्रिपेयर्ड है टू गिव बेल, दैट आई कैन फर्निश बेल
इन दिस केस ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर उसके फेवर में पास हो चुका है. देन इन दैट केस ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर अरेस्ट, at the time of arrest or at the time of custody. And if magistrate taking cognizance of such offence decide that a warrant should be issued in the first instance against that person, एंड अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू होना चाहिए, कि जिसके अगेंस्ट इस पर्सन इसके जिसने एंटिसिपेटरी बेल जिसके फेवर में ग्रांट हो चुकी है उसके अगेंस्ट वारंट इशू होना चाहिए, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ बेलेबल वारंट. मैजिस्ट्रेट उस केस में बेलेबल वारंट इशू करेगी बिकॉज उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर चुकी है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. सो अगर आप वारंट इशू भी कर रहे हैं तो उसमें बेल प्रोवाइडेड होनी चाहिए, दैट इफ यू आर रेडी टू फर्निश द बेल then you will be granted the bail in conformity with the direction of the court under subsection 1. इसमें आपका subsection 4 insert हुआ है 2018 amendment act से, which says that nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under subsection 3 of section 376, 376 AB or section 376 DA or section 376 DB. That means if your case relates to accusation किसका है, 376 3 का offence commit किया है, 376 AB का offence commit किया है, 376 DA का किया है या DB का किया है, then in that case उस पर्सन के फेवर में एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर ग्रांट नहीं होगा. नथिंग इन दिस सेक्शन 438 में कुछ भी जो भी प्रोवाइडेड है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा. शैल अप्लाई टू एनी केस, किस केस में, इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का अरेस्ट हो रहा है किस एक्यूजेशन पे, ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड दीज ऑफेंसेस, एनी ऑफ दीज ऑफेंसेस ऑफ द आईपीसी. इसमें दो केसेस एंटिसिपेटरी बेल के, वन इज योर गुरुबख्शन सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अनदर इज योर सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 है सुशीला अग्रवाल. 5 जजेस बेंच डिसीजन है. इससे पहले 439 कवर कर लेते हैं. 439 वी हैव ऑलरेडी डन बट वी हैव नॉट डन द अमेंडमेंट ऑफ 2018. सो 439 का सेकेंड प्रोवाइजो, 439 में आपका यहाँ पर एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ 2018 अमेंडमेंट एक्ट से. ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द हाई कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ट्रायबल अंडर सबसेक्शन वही सेम सेक्शन 376 3, 376 AB, DA, DB of IPC give notice of the application for bail to the PP within a period of 15 days. That means in cases में PP को within the period of 15 days, अगर इन cases में किसी ने bail के लिए apply किया then court shall give notice to the PP within the period of 15 days. आपको ये 15 days का time याद करना है that 15 days के अंदर PP को notice देना होगा. यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है पीपी को नोटिस देने के लिए, कोर्ट चाहे तो दे चाहे तो ना दे. इस केस में कोर्ट को नोटिस देनी होगी पीपी को विद इन द पीरियड ऑफ 15 days because the word shall has been used. Okay, from the date of receipt of the notice of such application, application मिलने के 15 days के अंदर. And second amendment has been made in your first A. 1A has been inserted. Proviso is inserted here and 1A is inserted by 2018 Amendment Act, which says that the presence of informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail. That means if इस एप्लीकेशन की इन केसेस की एप्लीकेशन पड़ी है बेल के लिए, इसकी हियरिंग के टाइम पर इंफॉर्मेंट जिस पर्सन ने उस ऑफेंस के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दी है, एफआईआर लॉन्च कराई, उसको उसकी हियरिंग मैंडेटरी. द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेंट shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail. बेल की एप्लीकेशन सुनते टाइम इंफॉर्मेंट या उसके द्वारा उसके थ्रू ऑथराइज्ड एनी पर्सन की प्रेजेंस इज मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी है टू इन केसेस में. ओके, सो 439 आपका कवर हो गया. अब 438 के केसेस हम देख लेते हैं.
Bail in anticipation of arrest is made in the case of anticipatory bail and accused is not in custody. Accused को reason to believe है that he may be arrested but he is not in custody. Regular bail में क्या होता है? Bail after arrest. Accused person has been arrested. After arrest he is making an application for regular bail. That means accused person is already in custody. Okay. See. Supreme Court in Gurbaksh Singh Sibia versus State of Punjab laid down following principles in respect of anticipatory bail. That it is a pre-arrest legal proceeding. Arrest होने से पहले की ही legal proceeding है. Arrest हुआ नहीं, arrest होने से पहले की legal proceeding है. It is an injunctive order, preventive order. It is not an injunction from arrest. Injunctive order है, that means prevent कर रहा है. But अरेस्ट से इंजंक्शन नहीं है, अरेस्ट करने से मना नहीं हो रहा. रादर आफ्टर अरेस्ट इट इज एन इंजंक्शन फ्रॉम कस्टडी. लेकिन अरेस्ट के बाद कस्टडी के लिए इंजंक्शन है. दैट आफ्टर अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल. लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेक्शन 438. दैट मीन्स एफआईआर लॉज होना नेसेसरी नहीं है 438 में एप्लीकेशन करने के लिए. विदाउट लॉजिंग एफआईआर नहीं भी लॉज हुई है, देन ऑल्सो यू हैव दिस फियर, दिस रीजन टू बिलीव दैट यू मे बी अरेस्टेड. देन इन दैट केस आप 438 में अप्लाई कर सकते हैं, इवन दो उस केस में एफआईआर लॉज हुई हो या ना हुई हो. Interim order can be passed without notice to the PP, but before passing the final order, notice must be given. Okay, interim order पास कर सकता है कोर्ट बिना पीपी के, नोटिस पीपी को नोटिस दिए हुए, बट बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर नोटिस मस्ट बी गिवन. दैट मीन्स यहाँ आपकी 438 की एप्लीकेशन पड़ी, कोर्ट को कंसीडर करना है दैट इस केस में बेल देनी है या नहीं देनी है, एंटिसिपेटरी बेल. सो कोर्ट व्हाट कैन कोर्ट डू, या तो कोर्ट आउटराइटली रिजेक्ट कर सकती है फ्रॉम ग्रांटिंग बेल, और व्हाट कैन कोर्ट डू, कोर्ट हियरिंग कंडक्ट करा सकती है इस केस में दैट वेदर द बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट. देन इन दैट केस यहां पर कोर्ट चाहे तो इंटरिम बेल दे सकती है, इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है. इंटरिम मीन्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, दैट यहां पर आपका हियरिंग कंक्लूड हो जाएगी. दैट बिफोर हियरिंग, ड्यूरिंग हियरिंग, दैट पर्सन शैल नॉट बी इन डिटेन्ड इन कस्टडी. तो इस चीज का इंटरिम ऑर्डर दे सकती है. अभी फाइनल ऑर्डर नहीं दिया, फाइनल ऑर्डर मीन्स फाइनल ऑर्डर में कोर्ट ग्रांट कर देगी, देन इन दैट केस अरेस्ट नहीं हो सकता. इंटरिम ऑर्डर के केस में क्या होगा कि इस स्टेज पे आपको कस्टडी में नहीं ले सकते हैं, इस स्टेज पे आपको आफ्टर अरेस्ट कस्टडी में नहीं ले सकते हैं. एंड व्हाट विल हैपन फाइनली विल बी डिसाइडेड हेयर. सो इन दिस केस इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करके कोर्ट नोटिस दे सकती है पीपी को that hearing conduct हो रही है, you should raise your objection, you should raise your grounds, and what are the grounds on which you say that the person should not be granted the anticipatory bail. And final hearing पे अगर ये कोर्ट डिक्लेयर कर देती है पीपी को हेयर करने के बाद एंड एप्लीकेशन कंसीडर करने के बाद दैट in this case bail shall be granted, then court will grant the anticipatory bail under section 438. But if the court consider that bail shall not be granted, then in that case bail will not be granted to that person. एंड दिस अगर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है तो ये अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल भी एग्जिस्टेंस में रह सकती है. ये आपका सुशीला अग्रवाल में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम पीरियड तक के लिए ये एग्जिस्टेंस में रहती है. So order under section 438 would not affect the right of police to conduct investigation. Even though 438 में anticipatory bail का order grant हो चुका है, then also police officer has power to investigate. It will not affect the power. It will not affect the power of a police officer to investigate. Where a case has been made for remand under section 162, 167 subsection 2 or reasonable claim to secure incriminating material under section 27 of Evidence Act, the power under section 438 should not be exercised. That means कि इफ आपका एक्यूज पर्सन है, अब उस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्कवरी स्टेटमेंट. सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डिस्कवरी स्टेटमेंट. द पर्सन एक्यूज पर्सन हु इज इन कस्टडी, उसका कन्फेशन तो इंपॉर्टेंट, अगर उसने पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन दिया दैट इज इररेलेवेंट. बट इफ एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट रिलेट्स टू एनी डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, that shall be relevant.
सेक्शन 27 कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट किसी एक्यूज पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को दिया इन कस्टडी, दैट विल बी इररेलेवेंट। बट इफ उसका कोई भी उस स्टेटमेंट का कोई पार्ट डिस्कवरी से रिलेट कर रहा, डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट और थिंग, जैसे अक्यूज पर्सन ने अपने स्टेटमेंट में बोला दैट आई हैव हिडन द वेपन from which I have committed the crime at this place, he has pointed out, that part will be relevant under section 27. So if even though उस person को anticipatory bail मिल चुकी है and he is not in custody, but section 27 के purpose से उसको custody माना जाएगा, deemed custody माना जाएगा। that अगर उसने कोई during investigation कोई discovery की है, then in that case even though he was not in custody, ये माना जाएगा that for the purpose of section 27 he was in custody. Next is your Sushila Agrawal case. Sushila Agrawal versus State NCT of Delhi 2020 held that the protection granted a person under section 438 CRPC should not be invariably limited to a fixed period. किसी एक fixed period के लिए limited नहीं है वो bail. Rather it can be for the entire period until the trial is completed. That means if anticipatory bail grant हो चुकी है, then इसका protection केवल कुछ period के लिए ही, rather ये कब तक इसका protection मिल सकता है, until the trial is completed. It should be in favor of the accused without restriction of time. कोई भी time restrict नहीं कर सकते anticipatory bail grant करते time. The life or duration of anticipatory bail does not normally end at the time and stage when the accused is summoned by the court. अगर कोर्ट ने accused को समन कर लिया, सिर्फ इस बेसिस पे anticipatory bail की प्रोटेक्शन खत्म नहीं हो जाएगी, एंड नहीं, it can continue till the end of the trial. However, if there are special circumstances, the court can limit the tenure of the anticipatory bail. So स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल का टेन्योर फिक्स कर सकती है, अदरवाइज अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, देन इन दैट केस कोर्ट क्या कर सकती है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर सकती, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल के टेन्योर को लिमिट कर सकती है. नेक्स्ट इज योर कैंसलेशन ऑफ बेल. सो कैंसलेशन ऑफ बेल इज अ जुडिशियल पावर. बेल कौन कैंसिल करता है, कोर्ट कैंसिल करती है. If the person released on bail tries to interfere in the conduct of the investigation, inquiry or trial, or tries to violate the conditions of the bail, then in such circumstances the bail may be cancelled. The rejection of bail when bail is applied is one thing and cancellation of bail is another thing. That means even if court ने bail grant कर भी दी है, then also court may cancel the bail if you have violated any of the condition of the bail, और किसी भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के कंडक्ट में इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स डिसुएट कर रहे हैं किसी पर्सन को, इंड्यूस कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं, देन इन दैट केस कोर्ट में बी कैंसल्ड. इट इज ईजियर टू रिजेक्ट अ बेल इन नॉन बेलेबल केसेस. नॉन बेलेबल केसेस में इजिली बेल रिजेक्ट हो सकती है. देन टू कैंसिल अ बेल वंस ग्रांटेड. कैंसलेशन ऑफ बेल इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग द अर्लियर डिसीजंस ग्रांटिंग बेल. लेकिन जब भी कोर्ट बेल कैंसिल करेगी तो पर से कैंसिल नहीं कर देगी, वो देखेगी, कंसीडर करेगी कि इस ग्राउंड पे आपको बेल ग्रांट की गई थी पहले. 437(5) empowers the court which granted the bill to cancel it if it considers necessary to do. 437(3) में कंडीशंस लगती, 437(5) में बेल कैंसिल कर सकती कोर्ट. एंड डायरेक्ट द पर्सन मे बी अरेस्टेड एंड कमिट टू कस्टडी. सिमिलरली 439(2) में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है, यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट के पास पावर है टू अरेस्ट एनी पर्सन रिलीज ऑन बेल एंड कमिट हिम टू कस्टडी. कंसिडरेशंस फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल. दैट मीन पोस्ट बेल वायलेशन हो गया है, आपने बेल दी है, बेल की कंडीशंस का वायलेशन हो गया है, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर रहा है अक्यूज पर्सन ने बेल लेते टाइम मटेरियल फैक्ट सप्रेस किए हुए थे जो बाद में पता चलते हैं कोर्ट को कि ये भी ग्राउंड से, अगर ये ग्राउंड्स उस टाइम पे इसने रिवील किए होते तो बेल इसको दी ही ना जाती इस केस में. टैम्पर्स विद एविडेंस, एविडेंस को टैम्पर करने की कोशिश करता है. कमिट सेम और सिमिलर ऑफेंस, सेम या सिमिलर ऑफेंस कमिट करता है. एब्सकॉन्ड और गोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज, misuses liberty granted to him, then in that case इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट बेल कैंसिल कर सकती है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी.
Bond means an instrument in writing by a person whereby he binds himself to do something or to act in particular manner. Bond एक writing में इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पर्सन देता है वो खुद को बाइंड करता है टू डू समथिंग. दैट जनरली क्या होता है, दैट आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अपीयरेंस का बॉन्ड अगर लिया गया है. 440 से 450 डील विद द एक्सक्यूशन ऑफ बॉन्ड बाय अक्यूज्ड एंड श्योरिटी. 440 says that amount of bond की अमाउंट क्या होनी चाहिए. Every bond executed shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, but excessive नहीं होना चाहिए. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में रिक्वायर्ड बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर मे बी रिलीज. हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ने जो भी बॉन्ड एक्सिक्यूट कराया है, जो भी अमाउंट फिल की है, उसे रिड्यूस कर सकती है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन. अगर पर्सन को लगता है दैट दिस अमाउंट इज इन एक्सेसिव, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. 441 सेज दैट when any person is released on bail or released on his own bond, या तो बेल पे रिलीज हुआ है कोई पर्सन या खुद के पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज हुआ है, a bond of such sum of money shall be executed by such person. कितने अमाउंट की मनी से वो बॉन्ड एक्सिक्यूट होना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा, एज पुलिस ऑफिसर या कोर्ट में थिंग, जो भी बॉन्ड एक्सिक्यूट करा रहा है. 441 डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज. Provided that every person standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before the court as to number of person to whom he used to surety. That means if बॉन्ड एक्सिक्यूट हो रहा है, उस केस में अक्यूज पर्सन ने किसी को श्योरिटी बनाया, देन दैट श्योरिटी शैल मेक अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 441A. व्हाट डिक्लेरेशन दैट श्योरिटी शैल मेक, दैट वो किन किन केसेस में श्योरिटी बना हुआ है. केवल अक्यूज के केस में श्योरिटी या अदर केसेस में भी वो श्योरिटी है. Discharge from custody as soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released from custody. That means जैसे ही bond execute होगा, then the person जिसने bond execute किया, he shall be released on custody. He shall be discharged. 443 the power to order sufficient bail when first taken bail is insufficient. That means अगर जो पहले बेल दी गई थी वो इन बॉन्ड एक्सिक्यूट हुआ था वो insufficient था, then in that case कोर्ट ऑर्डर कर सकती है that sufficient bail सबमिट करिए. 444 provide as sureties for attendance or appearance of the person released on bail may at any time apply to the magistrate to discharge the bond either wholly or so far as it relates to the applicant. श्योरिटी अपने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर सकती हैं कोर्ट में. फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड. 446 प्रोसीजर व्हेन द बॉन्ड हैज बीन फॉरफीटेड. 446 में क्या प्रोवाइडेड है, प्रोसीजर प्रोवाइडेड है किस चीज़ का, कि बॉन्ड के अगर बॉन्ड फॉरफीट हो जाता है, दैट मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है एंड यू विल हैव टू पे अ पेनाल्टी फॉर दैट. सो उस केस में प्रोसीजर क्या है, इट प्रोवाइडेड वेयर द बॉन्ड अंडर दिस कोड इज फॉर अपीयरेंस. बॉन्ड किसके लिए, अपीयरेंस के लिए या प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए है, बिफोर अ कोर्ट and it is proved to the satisfaction of the court that it has been forfeited. बॉन्ड अपीयरेंस के लिए या प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एंड कोर्ट के सेटिस्फैक्शन में ये प्रूव हो चुका है दैट बॉन्ड फॉरफीट हो चुका है. द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड्स and may call upon any person bound by such bond. Then in that case कोर्ट क्या करेगी, रीजंस जो ग्राउंड्स है उनको रिकॉर्ड करेगी एंड उस पर्सन को बुलाएगी जो उस बाउंड से बाउंड है, टू पे द पेनाल्टी और टू शो कॉज वाई इट शुड नॉट बी पेज. या तो पेनाल्टी पे करिए या शो कॉज, आप रीजन शो करिए वाई यू शुड नॉट पे द पेनाल्टी. इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन, अगर सफिशिएंट वो पर्सन सफिशिएंट कॉज नहीं दिखा पाया एंड द पेनाल्टी इज नॉट पेड एंड पेनाल्टी भी नहीं पे हुई, द कोर्ट में प्रोसीड टू रिकवर द सेम एज इफ सच पेनाल्टी वर अ फाइन इम्पोज्ड बाय अंडर दिस कोड. देन इन दैट केस कोर्ट विल रिकवर दैट अमाउंट एज अ, जैसे फाइन रिकवर होता है वैसे वो रिकवर होगा. provided that where such penalty is not paid and cannot be recovered in the manner aforesaid, the person so bound as surety shall be liable. अगर इस manner से भी bond की amount recover नहीं हो पा रही, then in that case कौन liable होगा, the person who was surety, वो liable होगा by order of the court ordering the recovery of money of the penalty or imprisonment in civil jail for a term which may extend to 6 months. That means या तो आप penalty pay करिए या फिर
6 महीने तक के लिए सिविल जेल, क्रिमिनल जेल नहीं, सिविल जेल। तो आपको ये टाइम पीरियड याद करना है कि अगर बॉन्ड फॉरफीट हो गया देन इन दैट, और उसकी अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई, देन इन दैट केस कितने टाइम पीरियड के लिए उसे जेल में भेजा सकता है, दैट इज इन सिविल जेल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं भेज सकते, तो ये टाइम पीरियड याद रखना ज़रूरी है। 446A provides for cancellation of bail and bond. 447 provides for procedure in case of insolvency, debt or surety when bond is forfeited. ये आपका important। 448 bond from minor, that means जिस person से bond लेना है, the person who is required to execute the bond, who is माइनर से बॉन्ड एक्सिक्यूट करा रहे हैं, देन इन दैट केस पर्सनल बॉन्ड नहीं एक्सिक्यूट कराएंगे, इस विदाउट श्योरिटी का बॉन्ड नहीं एक्सिक्यूट करा सकते। इसके केस में बॉन्ड विथ श्योरिटी होना चाहिए, मैंडेटरी है, बिकॉज ही इज माइनर। तो आपको माइनर केस में केवल ये याद रखना है दैट विथ श्योरिटी वाला बॉन्ड एक्सिक्यूट करेगा माइनर। 449 प्रोवाइड्स फॉर अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446 का जो भी ऑर्डर पास होगा पेनाल्टी का, दैट इज अमाउंट रिकवर करने का, या फिर सिविल जेल जो ग्रांट की है कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ अप टू 6 मंथ, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा है तो 449 में अपील करेंगे। इफ द ऑर्डर इज पास बाय मैजिस्ट्रेट द अपील वुड लाई टू द सेशंस कोर्ट, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी अपील। इफ द ऑर्डर इज पास बाय सेशन कोर्ट देन अपील विल लाई टू द कोर्ट टू विच द अपील लाइज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेशन कोर्ट। जनरली सेशन कोर्ट के ऑर्डर से जहां अपील लाई करती है उसमें जाएगा, जनरली हाई कोर्ट। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल वेस्ट विथ, कौन दे सकता है एंटिसिपेटरी बेल, या तो हाई कोर्ट या तो कोर्ट ऑफ सेशन, दोनों के पास पावर है ना। ऑप्शन में क्या लिखा, सीजीएम, द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली, हाई कोर्ट ओनली, नहीं, बी एंड सी, दैट मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। बेलेबल ऑफेंस means an offense which is shown as bailable. 2A में provided a definition which is shown as bailable in the first offense, first आपका जो schedule है, so answer will be in the first schedule. एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड केस जोगिंदर अलियास जिंदी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और हमने क्या पढ़ा, गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। In which of the following case the Supreme Court held that except in those cases which where there are reasonable grounds for that a person accused of an offence punishable with death, life imprisonment has been guilty of such offence, in all other cases non-bailable offence judicial direction shall always be exercised by the court in favor of granting bail. गुरुचरण सिंह। अच्छा, ये आपको पता होगा दैट bail is your general rule. What is your general rule? That is bail, and jail is an exception. जनरली बेल ही ग्रांट किया जाएगा, बट इफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रही देन इन दैट केस जेल दी जाएगी। एनी कंडीशन इम्पोज बाय अ मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल, कंडीशंस कहाँ इम्पोज होती हैं, 437(3) में। इसको सेट असाइड करने की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट, और कोर्ट ऑफ सेशन सेट असाइड कर सकता है इन कंडीशंस को, या मॉडिफाई कर सकता है। सेट असाइड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। कौन सा सेक्शन कहता है आपका ये, 439, ओके। Section 50 CRPC provides that every person arrested without warrant shall be informed of the ground of arrest and right of bail. Section 50 कहता है कि जिस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है उसे आपको बताना होगा whether he has right to bail or not, and if he has right to bail you shall police officer shall inform him, and किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया गया है वो भी इन्फॉर्म करना होगा। सेक्शन 50 CRPC सेज दैट इफ द अरेस्ट इज मेड फॉर अ बेलेबल ऑफेंस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म नहीं किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इट शैल रेंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इनलीगल एंड शैल इनेबल द पर्सन अरेस्टेड मूव फॉर हैबियस कॉर्पस टू ऑब्टेन हिज रिलीज।
विच इफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है कि क्या लिखा है, विच इज इन द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। दैट मीन्स ये पूछ रहा है इसमें से फॉल्स कौन सा है। अक्सर यहाँ गलती हो जाती है, नॉट करेक्ट, नॉट वर्ड जरूर कंसिडर करना है। बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में इसमें से क्या इनकरेक्ट है, क्या फॉल्स है। फर्स्ट, बेल मे बी ग्रांटेड द कोर्ट कंसर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट प्रोसिक्यूशन एंड फेल टू स्टैब्लिश अ प्राइमा फेसाई केस। अगर प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया प्राइमा फेसाई अपना केस, तो उस केस में तो बेल देनी होगी। तो बेल में भी ग्रांटेड, तो दैट मीन्स ये तो सही है। बेल may be granted if the court is satisfied that in spite of existence of a prima facie case there is need to release such person on bail in view of facts and circumstances of the case। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है दैट उसको बेल देना जरूरी है, सर्कमस्टांसेस ऐसी तो भी बेल दी जा सकती है, तो ये भी करेक्ट है। बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज हु मे बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सो ये गलत है आपका। दैट अगर अक्यूज को आइडेंटिफिकेशन के अक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, तो सिर्फ इस रीजन से हम एंटिसिपेटरी इस रीजन से सिर्फ बेल ग्रांट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती है कोर्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज इनकरेक्ट आंसर, दैट इज योर सी। सी इज योर इनकरेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, by which of the following amendments the provisions 438 of the Code of Criminal Procedure 1973 has been revived in UP। That means 438 CRPC UP में पहले थी, एग्जिस्ट कर रही थी, बट लेटर ऑन इसे रिपील कर दिया गया था, ऑमिट कर दिया गया था। बट 6 जून 2019 को फिर से ये री इंसर्ट किया गया है इस यूपी अमेंडमेंट एक्ट में। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसके थ्रू एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन फिर से यूपी में री इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, ये पार्ट हमने कवर नहीं किया था। सी, इन 2009 State Law Commission in its third report recommended to reintroduce it in यूपी। तो जब तक यूपी में एंटीसिपेटरी बेल नहीं था तब तक सेम डे बेल का प्रोविजन चलता था, सेम डे बेल की एप्लीकेशन पड़ती थी। बट 2009 में स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उसने बोला कि 438 को री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आफ्टर दैट यूपी की स्टेट ने 6 जून 2019 को से री इंट्रोड्यूस। आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी बिकॉज 6 जून 2019 से 438 यूपी में इन्फोर्समेंट में आया। ओके, अदर स्टेट में ऑलरेडी चल रहा था बट यूपी में नहीं था 438। यूपी में 438 कब से री इंट्रोड्यूस हुआ है? 6 जून 2019 से। एंड री इंट्रोड्यूस वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज पहले ये था, बीच में हटा दिया गया था, फिर ये दोबारा री इंट्रोड्यूस किया गया है। इन 2019 द स्टेट ऑफ यूपी अमेंडेड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 इन सो फार एज इट अप्लाइज टू द स्टेट टू री इंसर्ट सेक्शन 438 विच प्रोवाइड्स फॉर एंटिसिपेटरी बेल। और इसमें एक कंडीशन एड ऑन जो 438 में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन बट यूपी स्टेट अमेंडमेंट एक्ट ने एक कंडीशन एक्स्ट्रा इम्पोज की। व्हाट इज दैट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल shall finally dispose of within 30 days from the date of such application। means जिस दिन एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पड़ी है उसके 30 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ये केवल यूपी में प्रोवाइडेड है। यूपी ने अपना जो 438 नया री इंसर्ट किया हुआ है उसमें ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, अदर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड बेल एंड बॉन्ड। नाउ आपके दो टॉपिक्स बच रहे हैं, दैट इज 482, दैट इज योर इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स 482 में है, ये आपका बच रहा है एक टॉपिक। अनदर इज योर मिसलेनियस प्रोविजंस, दैट मीन्स इन अब इसके अलावा जो प्रोविजंस रह गए हैं सीआरपीसी में सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। बट चैप्टर जैसे आपका चैप्टर 20 थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 24 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 406 से 412 इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 421 इंपॉर्टेंट है, 428 इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 145, 147, 144, 144A, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो एक क्लास इनकी रखी जाएगी, इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस कवर होंगे फ्रॉम द व्यू ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो प्री में पूछे जाते हैं सेक्शंस वो आपके कवर किए जाएंगे इस क्लास में, मिसलेनियस प्रोविजंस वाली क्लास में। ओके, थैंक यू।